Good evening, all of you. I, Ashish Neeraj, welcome you all on the 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. This is the international webinar held by Society for Empowerment. So now I will request Professor S. Narayan ji to initiate the proceedings. Thank you, Neeraj. Today is as Mr. Neeraj said, that it is 151 birth anniversary of Gandhiji, and today is also the anniversary of Lal Bahadur Shastri ji, the one of the Prime Minister of India. So we are uh, paying our tributes to both of them uh, because both are the important figure for the development of the country. They have one brought freedom and another led the country on the path of the development. The today's program was to be inaugurated by the Honorable Prime Minister. We have made request and uh, till early this morning we were sure that he is coming to our program, but then we came to know that now he is not coming. So then we decided that we will go with our program because it is a scheduled program. We have already scheduled it about 20 days ago or so. So we have all respect and we are thankful to all the dignitaries who could not make it, but I am sure in future they will be joining us. And the theme of the webinar today is Swaraj to Atmanirbhar Bharat. Swaraj, the term Swaraj was for the first time used by uh, a leading saint of the Indian culture and tradition, Dayanand Saraswati. He used for the first time the term, uh, and by that he wanted to convey that let the country be free from all vices and there should not be any suffering in the society. Later on, Gandhiji also adopted, took this term Swaraj, and his Swaraj is generally by common man is marked by the boycott of English education, boycott of foreign dress, boycott of everything which were not Indian. And in that connection course, the uh, Gandhi Vidyapith were established in several places, and the people started using khadi and the other homemade clothes. Today, when we talk of Gandhi, Gandhi ji was very much interested that each person of the country should have sufficient food to eat, should have a place to live, and should have economic freedom also. So that was his desire. That's what he meant by democracy. That in democracy, it should not be only the political independence, but the economic independence be also there. For that, he fought and he brought independence to the country. But here now, the government, the present government, is trying to uplift the economic condition of the people of India, and for that they are using Atmanirbhar Bharat. Means you be self-reliant. The country should be self-reliant. Can be self-reliant only when the people of India are self-reliant. So this is the theme, and now I will request uh, Bhadra Bahan to begin with the uh, Gandhi Prarthana, Gandhi song, and then she will
carry on. She will put forth her uh, opinion, her thought on this theme, on this subject. So I request Bhadra Bahan to have a to please sing that song Gandhi Bhajan. I, Bhadra Bahan is a हाँ जिन्हों एक मिनट, जिन्होंने जो भी नहीं बोल रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग खुद को म्यूट कर लें ताकि पीछे आवाज की डिस्टरबेंस नहीं हो। तो जो लोग अभी नहीं बोल रहे हैं वो खुद को म्यूट कर लें। भद्रा बहन एक जानी मानी हस्ती हैं गांधी जी के विषय में। गांधी जी की बहुत बड़ी जानकार हैं और अहमदाबाद में जो गांधी जी का आश्रम है उसमें महिलाओं का जो एक विंग है उसकी वो इंचार्ज हैं। और इन्हें गांधी जी के भजन गाने के लिए और गांधी जी के विचारों को, खासकर कस्तूरबा के विचारों को अच्छे ढंग से ये प्रस्तुत करती हैं। इसके लिए पूरे विश्व में इनका जान ये जानी जाती है। तो मैं भद्रा बहन से आग्रह करूंगा, क्योंकि भद्रा बहन बहुत देर तक लगातार बैठ नहीं सकती हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो भजन, गांधी जी का जो भजन है उसको वो प्रस्तुत करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। साधो वो नर हमको भावे, सुख और दुख में आनंदमय रहवे, हर दम हरि गुण गावे। साधो वो नर हमको भावे, पर नारी पर धन को त्यागे, सत की रोटी खावे, तन मन और बचन से कोई जी को नहीं दुखावे। साधो वो नर हमको भावे, कर सेवा संसार की जिन से साची राह बतावे, धर्म करता धारावे तो हिम्मत हारन जावे। साधो वो नर हमको भावे, पर दुख भंजन होकर रहवे, गुरु गोविंद गुण गावे। दास सतारे गुरु गोविंद मिल कर, काल को मार भगावे। साधो वो नर हमको भावे। नमस्कार। अब आज का जो विषय है उसके बारे में मैं थोड़ा कहूंगी। स्वराज और आत्मनिर्भर भारत, उसके साथ
बहुत अच्छा विषय है। उसमें मैं स्वदेशी भी जोड़ना चाहती हूँ। उसके साथ गांधी की जो बात है उसमें तीनों आ जाती है। हम जानते ही है कि अंग्रेज जब राज करते थे तब कई लोगों को उसका विरोध करना होता था। जैसे हम जानते हैं कि बंगभंग और उसमें जहाल और मवाल पक्ष, ऐसे पक्ष से वो लोग, और दूसरा था हिंसावाद और विप्लववाद, अराजकता। ये दो थे। उनको भी स्वराज तो चाहिए ही था, लेकिन उसके साथ साथ दोनों का साध्य था कि स्वराज जो लेना चाहिए उसका साधन अलग था। साध्य एक था लेकिन साधन अलग था। तो दोनों मानते थे कि अंग्रेज जाए लेकिन अंग्रेजियत रहे। ये बहुत बड़ी बात है। गांधी का यहाँ विरोध था कि अंग्रेज जाए, उसके साथ अंग्रेजियत भी जानी चाहिए। इसलिए नारायण जी ने बताया कि मातृभाषा का और विद्यापीठ के जो काम थे गांधी के, वो सब उन्होंने शुरू किए। तो इसके लिए किया कि अंग्रेजियत को हटाए और हमारा जो अपनापन है वो हम हमारे जहन में लाए। अब स्वराज का अर्थ अलग 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 लोगों ने अलग किए हैं। तो एक अर्थ विनोबा जी ने किया है स्वराज, इसका अर्थ स्वराट। स्वराट मीन सूर्य। सूर्य स्वयं प्रकाशी है और स्वयं शासी है और स्वयं पोषी है। तो हम जान सकते हैं कि ये तीन जो बातें हैं तो स्वराज में आ जाती थी। वो गांधी मानते थे कि मन का राज्य हर एक व्यक्ति को मिले, उसकी चाबी। अब कितना ये सब साथ में सम्मिलित है कि मन का राज्य हर एक को मिले, उसके लिए क्या करने का। तो उन्होंने बताया कि सत्याग्रह, आत्मबल, दयाबल और करुणाबल, ये सब इसके साथ जुड़े हैं। वो आजमाने के लिए स्वदेशी की जरूरत है। तो सत्य का आग्रह स्वराज के लिए रखना पड़ेगा। स्वराज के लिए सत्य का आग्रह रखने के लिए हमें हमारा आत्मबल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आत्मबल कैसे बढ़े? एक में से दूसरे दूसरे को साथ साथ लेते जाते हैं। तो इसमें एकादश व्रत जुड़ गए। आत्मबल हमें बढ़ाना है। देखो, मूल बात तो स्वराज ही है, उसके साथ साथ आत्मबल आ गया। तो आत्मबल को बढ़ाने के लिए एकादश व्रत, किसी से हम डरते नहीं और किसी को हम डराते नहीं। ये बहुत बड़ा स्लोगन है। ये हमारा गांधी कथा में नारायण भाई ने एक गीत भी लिखा था यही मतलब का, अभय वो सब में आ जाए। आप लोग तो जानते हैं कि चंपारण का सत्याग्रह कैसे हुआ, उसमें निर्भयता आई। तो ये निर्भयता कैसे आएगी? एकादश व्रत उसके साथ जुड़े और वो प्रयत्न किए। वो उसके बारे में ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये सब जो है वो आत्मसात करेंगे तब आत्मबल खड़ा होगा। हम आत्मबल खड़ा करने के लिए किसी के सामने खड़े हो तब ये सब बातें हमारे हमारे जीवन में होगी, तब हम ये सब कर सकेंगे। दूसरी बात करुणा बल है। अब करुणा बल, दया बल जो कहते हैं, उसमें आएगा रत्नात्मक कार्यक्रम। तो ये तो साथ में जुड़ा ही हुआ है, 18 रत्नात्मक कार्यक्रम। और आज तो हम कई अलग अलग चीजें, वो सजीव खेती है, पर्यावरण है, पानी का प्रश्न है, वो सब इसमें जुड़ जाता है। तो जी स्वराज, और बहुत अच्छी एक बात गांधी का कोटेशन है, वो सबको ध्यान में रखने जैसा है कि जी स्वराज अपनी सभ्यता को स्वच्छ और स्थायी करने के लिए ना हो, वो निकम्मा है। हमारी सभ्यता का अर्थ नीति को व्यवहार के तौर पर, ये नीति बहुत बड़ी चीज है। वो नीति नहीं है, इसलिए ये आत्मनिर्भरता नहीं आएगी।
वो इसके बारे में सोचना पड़ेगा हमें। जहां जहां नीति का लीकेज है वहां वहां खामियां होती जाती है। तो नीति को व्यवहार के तौर पर धर्म, राज्य, समाज सब व्यवहार में सर्वोपरि स्थान देने में आए। अब सोचिए, आप तो विद्वान लोग हैं कि ये सब कैसे अपनाए और कैसे हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने में क्या खामी है, ये नीति नीति को और मूल्य को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आज नीति का अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए आत्मनिर्भर नहीं बन सकते हैं। हमारी विरासत तो बड़ी है, हम जरूर बन सकते हैं अगर हम लालच छोड़े और संतोष रखें, तब आत्मनिर्भर बने हम। आप लोगों को मैं बहुत डिटेल में नहीं जाती हूँ, लेकिन ये सब जो बाहर के देशों के प्रति हम लालायित होते हैं, क्यों? वो उसकी चीज लेने के लिए लालायित होते हैं, कम दाम और टिकती ज्यादा है। ये सब लोगों को आकर्षित करता है। तो हम भी, हमारा जो काम है उसमें अपने नीति लाए और लालच छोड़े तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमारे पास तो बहुत है, पुरानी विरासत है। अब ये आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो बात है एक गांधी की, वो ग्राम स्वराज। अब ग्राम स्वराज में हम लोगों ने क्या किया है, पिरामिड जैसी विकास कर दी है। पिरामिड जैसी विकास नहीं, लेकिन ओशनिक सर्कल जो गांधी का था कि समुद्र की तरंगे एक दूसरे को साथ में लेके चलती है और छोटे आदमी भी ऊपर उठते हैं, ऐसा विकास तो ग्राम स्वराज के साथ साथ ये करना पड़ेगा। और इसके लिए 3 बातें और कही है कि ग्राम स्वराज में क्या करना पड़ेगा, संवाद की कला और सर्वानुमति। गांव में जाके गांव लोगों के साथ बैठ के ये संवाद की रचना करनी होगा कि आपको क्या चाहिए, ये गांव में क्या 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 चीजें होनी चाहिए और क्या उपलब्ध है। इससे कई उद्योग हमारे खड़े कर सकेंगे। सादगी और स्वयं मेहनत करना, वहां जाके हम उपदेश देके बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं। हमें भी अपने जीवन में सादगी स्वीकार कर और उनके साथ मेहनत में जुड़ जाना पड़ेगा। सामूहिक विचारणा और कर्तृत्व का विभाजन, सब साथ में बैठ के करेंगे कि भाई ये क्या करना है, हमें ये गांव में ये प्रश्न है तो इसके लिए इसका हल कैसे निकालेंगे। आप में से ही कोई उसका कर्तृत्व ले। कर्तृत्व विभाजन करने की जो बात है उसके लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। गांवों के समूहों को इकट्ठा कर अपनी जरूरतों के लिए संवाद करना पड़ेगा। कई प्रकार के हस्त उद्योग आज है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज ग्राम उद्योग कैसा है और कैसा चलाना पड़ेगा। पुराना ग्राम उद्योग के बारे में जो कहा है गांधी ने, वो चालू रखेंगे या नए उसके साथ जुड़ जाएंगे, वो भी करना पड़ेगा। और मैंने कहा कि ये दोनों के साथ हमारा जो थीम है उसके साथ मैंने स्वराज को भी साथ में जोड़ा है। और आत्मनिर्भरता के साथ स्वराज के साथ साथ स्वदेशी को जोड़ा है। स्वदेशी अभिमान हमको होना है। वो स्वदेशी भावना कैसे, 3 बातों पे मुख्य है। 3 बात है, अपना धर्म पालन करना चाहिए, उसमें कुछ कमियां हो तो उसको बदलने का प्रयत्न करना चाहिए, ऐसी सेवा करनी चाहिए। धर्म मतलब ये जो धार्मिक संस्थाओं का धर्म है वो नहीं, लेकिन स्वधर्म जिसको कहते हैं, हमारा धर्म क्या है। और उसके साथ वो धर्म के साथ साथ ये धर्म में भी जो चालू धर्म है उसमें क्या कमियां है। जैसे गांधी ने बताया था कि अस्पृश्यता निवारण वो है, वो कलंक है। वो वो जो जैसी जैसी हिंदू धर्म में जो कोई कमियां है वो निकाल के उसमें कुछ सुधार आए, वैसे प्रयत्न करना वो स्वदेशी है।
दूसरा, राजकीय विषय में देशी संस्थाओं का उपयोग करना चाहिए। उसमें भी कुछ कमियां दिखे तो दूर करनी चाहिए। वो देशी संस्थाएं आप लोग जानते हैं कि ग्राम पंचायत वो सब है, तो उसमें क्या सुधार करना है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और तीसरा है, आर्थिक विषय में हमारी नजदीक के लोगों ने बनाई हुई चीज का उपयोग करना चाहिए। वो आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कई गांव होंगे, वो इकट्ठा साथ में रह के कोई चीज एक गांव बनाए, दूसरा दूसरी चीज बनाए, वैसा करके। अब एक ही गांव में सब कुछ बनेगा ऐसा नहीं। 10, 25, 15 जितना भी गांव है, वो एक इकट्ठा होके कोई चीज बनाए और उसका उपयोग करे। तो उसको तीसरा है, आर्थिक विषय में हमारी नजदीक के लोगों ने बनाई हुई चीज का उपयोग, और जिस उद्योग में न्यूनता दिखे उसे दूर करके पगभर करने का प्रयत्न करे। तीसरा मुद्दा जो उसमें आर्थिक और औद्योगिक जीवन में स्वदेशी का त्याग करने से देश को हानि होती है। गांव में उद्योग बढ़े, कारीगरी बढ़े, आसपास के गांव मिलकर एक दूसरे के लिए पूरक बने। अब सब एक ही गांव में उत्पादन हो ऐसा नहीं, आजू बाजू के कई लाख, जैसे मैंने बताया, वो सब जुड़ जाए और उसके बारे में करे। ये तीनों की बात मैंने गांधी के संदर्भ में थोड़े से समय में कर दी है। मेरा समय भी बहुत, 10 मिनट आपने दी थी, इसलिए अब मैं समाप्त करती हूँ। इसके बारे में बोलने के लिए मुझे अनुमति दी, इसलिए आप सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भद्रा बहन, आपने बातों को बहुत ही अच्छी तरह से रखा है। इसके लिए आपको पुनः बहुत ही धन्यवाद। और मैं अब फिर से अभी हमारे साथ बीच में हमारे साथ सर, बीच में AK पांडे हाँ, सर भी जुड़ डॉक्टर ए के चुके हैं। पांडे आए हैं, तो हम सभी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर ए के पांडे जी का भी स्वागत करते हैं, प्रोफेसर रविंद्र जी का भी स्वागत करते हैं, जी, और डॉक्टर हृषिकेश मिश्रा साहब का भी स्वागत करते हैं, और डॉक्टर शिवानी का भी स्वागत करते हैं। और ये बीच में बीच में बीच में AB अच्छा सिन्हा सर भी आए थे। AB सिन्हा सर भी एक मिनट के लिए कनेक्ट हुए अच्छा, थे, बट डिस्कनेक्ट हो जा एंड रहे हैं आई वो। ऑल्सो अभी वेलकम कनेक्ट हुए थे प्रोफेसर थोड़ी देर विलियम फ्रॉम US. I am very much thankful to him that he could make it. And once again, we are sorry that we could not get time from the Prime Minister. Actually, हम लोगों को समय मिला था, लेकिन बीच में जो इस पर्दे के पीछे इस सोसाइटी को के लिए एक्टिव रहते हैं, मिस्टर सुभाष, वो कोविड से इन्फेक्टेड हो गए हैं। उसके वजह से ज़्यादा ध्यान मेरा उधर चला गया और इधर कम रहा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया है। प्राइम मिनिस्टर का इस बार आना नहीं हो पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, क्योंकि सुबह उन लोगों का फोन भी आया था और पत्र भी आया, खबर भी आ गई कि वो आज के प्रोग्राम में नहीं आएंगे। तो अगले प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जब आपका अगला कोई प्रोग्राम होगा इस तरह का तो मैं आऊँगा। तो ये आप लोगों को बताना भी था, और मेरे तरफ से ही थोड़ी कमी हो गई, क्योंकि मैं कुछ दूसरे तरफ ज़्यादा व्यस्त हो गया, और पिछले 2-3 दिनों से मैं उधर व्यस्त हूँ, तो इस पे उतना पूरा समय नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उधर ज़्यादा फॉलो अप नहीं हो पाया। और हम लोगों के बीच में पहली बार ये डॉक्टर ऋषिकेश जी हैं, ऋषिकेश मिश्रा जी, ये थारू जनजाति का जो जगह है रामनगर, वहाँ पे एक कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा, Professor William is a principal in a college, very important college located in the tribal region. And so I have requested him to come and give his address. Now I will request Professor Ravindra ji to present his paper, which is the key paper of this webinar. So प्लीज वेबिनार के लिए आप रविंद्र जी अपना वो पेपर
प्रेजेंट करें, अपने विचारों को व्यक्त करें। जी, thank you, Professor Anand. And I feel very proud and privileged that you have invited me in such a important webinar, which is uh, you have organized today. And this day is also very important historically, in, not for our nation, but it's for whole world. It's important. So my lecture, I will deliver my lecture. Most of the part of my lecture is in Hindi, but meanwhile I use English also. So because it's an international webinar, so but please allow me to speak in ओके, Hindi also. And I'm thankful to Ashish Neeraj ji. He's moderator of this program, and Bhadra Savi ji, respected Bhadra Savi ji ने जो बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण यहाँ पर दिया, और उन्होंने जो ये कहा कि साधो वो नर हमको, साधो वो नर हमको भावे. It's a beautiful recitation by भद्रा सावी जी. एंड मैंने ये बात ये पहली बार सुना, और मुझे मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इट्स रियली वेरी टचिंग दिस poetry by Bhadra Savi ji. So my topic is we all know this Swaraj and the Atmanirbhar Bharat. So because I am a student of economics, and I will deal most of the part of the economic thought of Mahatma Gandhi. And in that connection, first of all, I will talk about this historical economic development of India and the relevance of Gandhian thought. So जैसे जैसे as we all feel कि दुनिया में से जरूरत से ज्यादा गरीब अमीरी है, there is a means too much richness to and the same time there is too much poverty also. So जहाँ दुनिया में इतनी ज्यादा अमीरी है और इतनी ज्यादा गरीबी भी है, दोनों चीजें बहुत ज्यादा हैं, और इस स्थिति में जो गांधी जी कैसे कितने प्रासंगिक आज के समय के लिए हो सकते हैं. तो हिस्टोरिकली यदि हम देखें कि जैसे जैसे मुझे लगता है, और वी ऑल फील कि जैसे जैसे और समय बीत रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे हम इकोनॉमिक डेवलप हो रहे हैं, हम पॉलिटिकल डेवलप हो रहे हैं, ग्लोबलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे में आजकल बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं पूरी दुनिया में. यदि आप देखें तो अभी इस समय में बहुत ज़्यादा जो है गांधी रेलेवेंट हो जाते हैं. उनकी उनकी जो अहिंसा की जो नीति है, उनकी जो जिसपे हम अभी भारत के आत्मनिर्भर भारत और हमारी जो है स्वराज और स्वदेशी की बात मैडम ने की, उन पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे. तो हिस्टोरिकली देखा जाए, हम आत्मनिर्भर थे. We were self-dependent. We were not only self-dependent. India is not only self-dependent, but we have something 30% share in world GDP at the time of 1600 सोलहवीं शताब्दी में, जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं आए थे. यदि एंगस मैडिसन की बहुत फेमस किताब आप देखें, तो हम ना केवल भारत आत्मनिर्भर था आर्थिक रूप से, मैं इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा मैं फोकस करूंगा, तो हम उसमें आत्मनिर्भर थे. और जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए, जब उस समय भी हम हमारा जो पूरी दुनिया की जो जी थी, उसमें हमारा हिस्सा लगभग 23-24% के आसपास था. तो ये आप देखें कि हम आत्मनिर्भर, ना केवल आत्मनिर्भर थे, वी वर नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट, बट हम अपना जो सरप्लस था, we exported our surplus to different so called developed nations of today. आज के जो विकसित देश हैं, हम उन्हें जो है हमारा जो सरप्लस था, हम उसको एक्सपोर्ट करते थे. बट व्हेन हमारा कॉलोनाइजेशन हुआ, उपनिवेशवाद के समय, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से वापस गए, तब तक हमारी जो जो ब्रिटिशर्स की जो इतना ज़्यादा हमारे देश को लूटा गया, दिस वर्ड इज लूट,
so popular that it's included in Oxford dictionary also. This loot word is. So at the time of independence 47, we have only merely 2.5% share in world GDP. So ये जो बात हुई, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि हमने उसके बाद से जो डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी हुई, हमने जो डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, तो व्हाट हैपेंस, और उसके बाद से आज गांधीयन फिलॉसफी हमारे लिए कितनी रेलिवेंट हो जाती है, that I want to focus in. I know I have instructed by Professor Narayan that you have 20 minutes for your key presentation, so I will limit myself in that stipulated time. So in short, if we understand, at the time of 47 and independent, we adopted a strategy which is a mixed strategy of development, mixed economy. At the one hand, we have some public enterprises, we have planned economy, and the other we have some private players also. So this will, so we have adopted this strategy, this mixed economy strategy until 1991. And thereafter, a reform, India made a reform in 1991, which is, we all know, which is a privatization and globalization and liberalization. So we adopted that strategy in 91, and still we have focusing more on privatization. But what happened when we adopted this strategy? What happened to our economy? If we see from 47 to 2020, the agriculture, which is one of the important sector of our economy, and which is still very important. And in the COVID time, agriculture is more important, because this is the only sector which is growing positively 3%. Other sector is going minus 23.9%. So agriculture is so important. Rural economy is so important. What Gandhiji is focusing on, and what we have feel and we have seen in this great pandemic time, in this very deep recession time, where economy hit hard, and its magnitude is very hard. Its speed is very hard of this slowdown. So, but agriculture is doing well. So this is the one very strong point behind Gandhi and Gandhian philosophy. So, but what happened in this 70 plus years, that हमने ये किया कि जो division जो था, we have this gap between rural and urban gap. This gap हमारा बहुत ज़्यादा हो गया. This is हमने जो, what we say is this is the reform, but हमें कौन सा reform चाहिए? What reform we actually need today? That reform is enlarging the gap between rural and urban. That reform is enlarging the gap between organized and unorganized sector. So in this 70 plus years, our agriculture sector contribution in GDP comes down from 55% to 13%, but it's still more than 50%, near about 60% population is depending on agriculture. This is what happened. Well, the strategy which we have adopted, and not only this, but the contribution in income and asset of and rural sector in economy is steadily comes down. जो ग्रामीण क्षेत्र का जो योगदान था आय में, संपत्ति में, वो कम होता चला गया. और इसके कारण ये हुआ कि हमारे जो देश का, यदि आप देखें तो साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें हम देखते हैं कि लगभग हमारी जो 50 करोड़ जो वर्किंग फोर्स है, हमारे लोग हैं, इनसे इनका जो 90% है, the 90% of workforce of Indian workforce is unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कफोर्स है, और हमारे यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइज सेक्टर का बढ़ता गया. So this will create a huge disparity between rural and urban.
And this is the strategy what we have adopted from last 70 years. So ये जो असमानता बढ़ी, यदि आप देखें, यदि देखें अभी शहर और गरीब और गांव के बीच की असमानता यदि आप देखें, तो शहरों का जो योगदान है आपकी आय में, संपत्ति में, यदि टॉप 10 सिटीज, यदि आप टॉप 10 सिटीज यदि आप लेंगे हमारे देश की, कि उनका जीडीपी में कितना योगदान है, इट्स मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन। आप पिछले कई दशकों से देखेंगे कि हमारे देश की जो 1% जनसंख्या है या 5% जनसंख्या है, उनका जो कई दशकों से आप देखें तो उनका जो इनकम है और उनकी जो संपत्ति है, इनका शेयर बढ़ता जा रहा है। सो हम लोग जिसकी तरह बढ़ रहे हैं, हमारा जो डेवलपमेंट जो जिस तरह बढ़ रहा है, वो डेवलपमेंट बढ़ रहा है एक अनइक्वल सोसाइटी की तरफ, एक जहाँ पे की असमानता है, जहाँ पे स्ट्रक्चरल है, दिस इज द स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस इज देयर इज स्ट्रक्चरल पॉवर्टी इज देयर, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी इज देयर। सो एंड द टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, इसका टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन यदि हम देखते हैं, जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है कि इसका क्या सॉल्यूशन है, तो टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन कहता है कि जो पूंजीवाद है, जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में जो असमानता है, इसको वेलफेयर स्टेट के माध्यम से दूर करना चाहिए। और ये जो वेलफेयर स्टेट है, इसमें सरकार जो है अमीरों पे टैक्स लगाए, और टैक्स लगा के देन उसको जो है वेलफेयर के लिए खर्च करे। सरकार को शिक्षा में ज्यादा खर्च करना चाहिए, साथ सरकार को स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, कुछ जो है गरीबों को अनुदान देना चाहिए। दिस इज द टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, जो हम क्लासरूम में जो टेक्स्ट बुक देखें उस पर दिया जाता है, पर दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ये हम कहीं पर जो बेसिक जो फंडामेंटल जो चीजें हैं, उन फंडामेंटल चीजों को हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। दैट फंडामेंटल इश्यूज आर मिसिंग। तो ये जो है एक बड़ी जो डिस्पैरिटी हुई है, और जो कि गांधी जी का जो विचार था, वो और ज्यादा रेलिवेंट होता है। क्योंकि जो अभी मैडम भी कह रही थी, जो स्वराज की बात थी, जो स्वदेशी की बात थी, हम जो आत्मनिर्भरता की बात है, हमारी जो आत्मनिर्भरता, हमारी जो प्राथमिक चीजें हैं, उन पे हमारी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। ठीक है, हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो जो गांधी जी का जो चरखा था, गांधी जी का चरखा इज ए सिंबल ऑफ स्वराज एंड स्वदेशी, एंड इट्स ए सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के भी डिजिटाइजेशन के युग में हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी उसे गांव तक, लोगों तक कैसे ले जाएंगे। आज टेक्नोलॉजी इतनी फ्रेंडली हो गई है कि वो सभी गांव तक पहुंच चुकी है। सो चरखा भी एक टेक्नोलॉजी थी जो स्वदेशी के लिए, बट वी आर अनेबल टू पास दिस टेक्नोलॉजी टू द रूरल पुअर। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी असफलता है। ये नहीं है। मैं जब छोटा था, मैं था, तो कभी जब माता पिता थे, वो कहते थे कि बेटा हमारे यहाँ शक्कर खत्म हो गई है, और ये पहले रिवाज था, आजकल शहरों में शायद ये संस्कृति गायब हो गई है। तो वो कहते थे कि ठीक है, हमारे पड़ोसी से आप एक कटोरा शक्कर मांग के ले आइए, और हम लोग छोटे बच्चे थे, स्कूल में तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते थे, लेके आ जाते थे। तो जो सेल्फ डिपेंडेंट है, इसका मतलब नहीं है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हम जरूर इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम उतनी चीजें जरूर दूसरों से ले सकते हैं, हमारा इंटरडिपेंडेंस होगा, उतनी मात्रा में लेना चाहिए कि हम पूरे संपूर्ण रूप से उन पर निर्भर ना हो जाए। तो ये जो आत्मनिर्भरता की जो बात है, जिसको गांधी जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति, उनके जैसे गांव में प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्किल है, प्रत्येक व्यक्ति का जो लेबर है, प्रत्येक व्यक्ति का जो श्रम है, जो उनका श्रम का महत्व था, उसका हमें उपयोग करना चाहिए। तो आज के समय में इन चीजों का और ज्यादा महत्व हो जाता है। क्योंकि यदि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम यदि आज जो चर्चा हो रही है कि हम यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कि हम अपने ये बच्चों के लिए कैसी दुनिया देखना चाहते हैं, आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उनके लिए हमें कैसी दुनिया चाहते हैं। यदि हम इस बात पे यदि चर्चा करेंगे, आज पूरी दुनिया में जो है 2030 के लिए जो है पूरी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बने, तो ये हम एक कैसी दुनिया चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, हम ऐसी कैसी दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं बच्चों के लिए। क्या ये जो पर्यावरण के इशू हैं, क्या ये जो जल के इशू हैं, या आवास के इशू हैं, या गरीबी का इशू है, तो ये ऐसी दुनिया हम निश्चित रूप से उनकी नहीं छोड़ के जाना चाहते।
तो ये इन चीज़ों पे यदि हम विचार करेंगे और बहुत गंभीरता पूर्वक यदि इस पे हम विचार करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो जो गांधी जी ने कहा था, जो एक आत्मनिर्भरता की जो बात कही थी, जो आपके स्वदेशी की जो उन्होंने चर्चा की थी, उनका जो जो लेसन था, उनकी जो ट्रस्टीशिप की जो बात थी, उनकी जो पूंजीवाद के लिए बात था, क्योंकि पूंजीवादी इकोनॉमी में ये देखा गया है कि उनका बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता, और तमाम अध्ययन दुनिया के बताते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उन उन वो कहीं भी बहुत ज्यादा लोकतंत्र के पोषक के रूप में नहीं काम किए हैं, ना उनका बहुत योगदान जो है देश की शिक्षा को बढ़ाने के लिए है, ना ही पूंजीवादी जो है कैपिटलिज्म के अंतर्गत, ना ही बहुत ज्यादा उनका उनका जो कंसर्न है, they are not very much concerned about the upliftment of the जो है आपके जो जो पुअर, या upliftment of the जो है those who have not out of the orbit of the development. so ये चीज जो है अभी तक पूरी दुनिया के जो अध्ययन बताते हैं, तो यहाँ पर हमको जो है एक ऐसी चीज चाहिए, एक जो कि साथ ही साथ हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिविल सोसाइटी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चाहिए, जो कि इस जो इस पे चेक एंड बैलेंस रखे, और इसको किस प्रकार से इसको हम ट्रांसलेट कर पाते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, और ये बहुत इस पे हमारा फ्यूचर, हमारा बहुत कुछ जो फ्यूचर है इस पे बहुत अधिक डिपेंड करेगा। तो ये जो एक चुप्पी है, ये एक तरीके से जो एक साइलेंट है कि इन सुधारों में, सुधार के नाम पर हमने जो है सार्वजनिक क्षेत्र से सिर्फ निजी क्षेत्र की तरफ हम गए, पर सुधार का, वास्तविक सुधारों की जो बात है कि जहां पे हम लोगों को रोजगार दे पाए, और ये इस पैंडेमिक के समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखने से बहुत ये लगता, ये हमें ये सिद्ध हो गया है, और ये पता चल रहा है कि हाउ मच रेलेवेंट गांधी थॉट इज। तो आज के दिन इस बहुत जो इतना इम्पोर्टेंट वेबिनार हमने रखा है, मैं सभी से, हमारे जो है जो लोग यहाँ पे इस वेबिनार को सुन रहे हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, तो यही मैं सबमिट करना चाहूँगा कि जो गांधी जी के विचार थे कि हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था का, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें जो शोषित है, जिसमें जो सबसे अंतिम व्यक्ति जिसे गांधी जी कहते थे, उस अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से नीति बनाई जाए कि उसमें उस व्यक्ति का जो है समावेश भी हो, उसको ध्यान में रखकर हो। तो इन शब्दों के साथ मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑर्गेनाइजर, particularly नारायण जी, for inviting me in such a important webinar which is organized by Society for Empowerment. So thank you sir, thank you very much. थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। प्रोफेसर रविंद्र साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और हम लोगों ने सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ने पिछले 4 सीरीज में गांधी जी की के रेलेवेंस के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया है, जिसमें कई बड़े लोग आए थे, और उसका इनॉग्रेशन आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब ने किया था, और वो उसमें गांधी जी के जो पात्र हैं डॉक्टर अरुण गांधी जी, और उनके प्रपौत्र जो हैं तुषार गांधी जी, वो लोग भी आए थे, उन लोगों ने भी अपना विचार रखा है, और वो लोग फिर भी वो अभी और हमसे उनसे चर्चा चल रही है, वो और इस तरह का वेबिनार के बारे में कह रहे थे। तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, आपका जो विचार है उस विचार से को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और इसमें जितना संभव हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे, और ये उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के हमारे जो आयोजन होंगे उसमें भविष्य में भी आप हमारा स्वीकार करेंगे हमारे इनविटेशन को, और आप आएंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप एक बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इसलिए गांधी जी के अर्थशास्त्र को सभी लोग सही ढंग से, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख पाते हैं। आप में ये खूबी है कि आप गांधी जी के विचारों को अर्थशास्त्र की भाषा में बहुत ही अच्छे तरह से रखते हैं। अब मैं प्रोफेसर विलियम, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं वहाँ न्यूयॉर्क में, तो मैं उनसे आई विल रिक्वेस्ट प्रोफेसर विलियम to give your opinion
Professor William, please. I am very much thankful to you for your participation in this webinar. Now you have heard the opinion, the paper of Professor Ravindra Verham. He is a professor of economics in Pandit Ravi Shankar University, Raipur, that is in the state of Chhattisgarh. Now I request you to present your views on the theme of the today theme. Professor William, please. Thank you. Thank you very much. And I appreciate the invitation to present at this seminar. And also, I'm particularly grateful because this has given me the opportunity to do more research into the issue of Swaraj and to really educate myself in an area that I was interested in, but I have to admit was just beginning. I really feel like a beginner in this seminar, and I've uncovered certain lines of inquiry in my research that now I'm very interested in pursuing in greater depth and greater detail. What I want to do today is talk about the relationship of Swaraj to artisanship. Swaraj is often defined as self-rule, which some analysts of Gandhi, such as David Hardiman, in his excellent analysis, which is called The Global Legacy, Gandhi in His Time and Ours, which is one of my favorite studies of Gandhi. He defines Swaraj as internal self-discipline, while Ramachandra Guha observes the term and also that observes that the term also incorporates the idea of self-reliance or Swadeshi. But a definition of Swaraj that I like, or one of the uses of the term, involves the sense of decentralized government and village government. This was written about in a series of writings that were collected in a book that appeared and was edited and it was published in India in 1933 when Gandhi would have been about 64 years old. And it did not appear in English until 1962. This edition in English is published as Village Swaraj, which is very different from the earlier text Hind Swaraj, which Gandhi is much better known for. I'm concerned mostly with the second half of the book, which deals with the theme of village life and the idea of decentralized power. One of the things that's really interesting too, as speaking as an American in the 21st century, especially after the Occupy movement, the links, the relationship between the Occupy movement being a decentralized political resistance movement really draws on Gandhi and Gandhi's work in the decentralization of power in ways that were not explicitly acknowledged during the Occupy movement of around 2011, 2012. So Gandhi's work and ideas continue to play on, even though he's not necessarily acknowledged for that aspect of his legacy. In Village Swaraj, Gandhi covers the role of self-reliance and self-discipline, but it is a political as well as individual self-discipline and a form of leadership within decentralized village communities. Now, as background, I have to say that I'm approaching this work from the perspective of folklore and folklife studies, even though I teach in a department of sociology and anthropology, and my work is very much informed by those disciplines. My training is in the field of folklore, and folklife scholars such as myself look at the role of material and expressive culture in society, and occasionally in economic development, as well as the larger political context. And one of the things just that I've been interested in my own personal work is the relationship of artisanship and craft to political context and political power. What's particularly interesting to me as a folklorist is that Gandhi devotes several essays, which the editors assembled. Several of his essays focus on artisanship and what we in my field would refer to as folk life, which involves the totality of all handmade material culture,
as well as their use and the related vernacular belief systems about their use and the related vernacular social structures of the communities in which the crafts are made and used. In Gandhi's case, particularly, there's an emphasis, as one might expect, on khadi, cotton cloth, and that really takes up a central place in the second half of the book. After all, the charkha or spinning wheel is the central symbol associated with Gandhi, and it's no accident that this is related to artisanship and hand labor, a recognition that I have to say is largely lost in the West. In chapter 19 of the book, Khadi and Spinning, in this chapter, Gandhi talks about the expectation that everybody in India would do their own spinning and their own weaving of cloth. Gandhi imagined that up to 25 crore of people in India would be engaged in this kind of industry. And I want to read a short passage from the text, starting on, in this edition, starting on page 131. He writes that if people spin during the hours of the day and have the yarn woven and wear it, no mill-made cloth can compete with their khadi. The cloth thus manufactured would be the cheapest possible for them. He goes on to say that spinning, he goes on to claim that spinning supplies the readiest occupation to those who have leisure and are in want of a few rupees. It is known to thousands of people and is easily learned. It requires practically no outlay of capital. The wheel itself can be easily and cheaply made. And it affords, significantly, it affords immediate relief in times of famine and scarcity, as well as being able to stop the drain of wealth which goes outside India in the purchase of foreign cloth. Let me see, I now have lost my place. 1 second. Oh, okay. And it and in doing so, it also, as I said, saves money from being distributed outside of India and keeps that wealth within India itself. So what this does is to present a model and use cloth, homemade cloth, as a model for economic self-sufficiency, as well as for local leadership at the village level required to organize such an industry. All of this can take place in a very decentralized way and does not need any kind of central government or central economic authority for it to run. While Khadi, of course, is a prototype, however, in a prior chapter, Gandhi talks about the cultivation of fruit, grain, and crops, particularly in times of privation and food shortage. And in the chapter that follows the Khadi cloth chapter, he talks about other aspects of artisanship and other examples of traditional craft, what he calls other village industries. I want to talk, and I want to continue to talk about the relationship of Swaraj to artisanship. Again, his explanation is that these smallest local industries will contribute to the self-sufficiency on the part of village life, the distribution of leadership and equality. This will also contribute to the elimination of caste, and it creates inexpensive ways of creating the kinds of materials that people need for their everyday lives. So this requires a certain degree of organization and a tremendous degree of self-discipline to carry this off, to pull this off. But it's a way of maintaining the autonomy among villages against the idea of both outside colonial colonization, or the colonization by an outside power, such as Great Britain, as well as staving off the industrialization that renders village life obsolete. And he was very concerned about the fact that there were something like 7 lakh villages that were in danger of losing their way of life should economic manufacturing become centralized and particularly controlled by a colonial power, but also industrialized and controlled by an urbanized central government. Among the other industries and artisan crafts that Gandhi talks about that are included in this book,
Some are food related and involve the cultivation of traditional foods and traditional food methods, such as dairying, the hand pounding of rice, the hand milling of corn and other grains, also the milling of oil, and the development and manufacturing of sugar. He also talks about beekeeping, soap making, handmade paper making, the local making of ink, and a very interesting section that ends the chapter in which he has a short passage, but nonetheless, I think, significant one, in which he talks about the role of village exhibitions and the idea of a kind of what in the European context might be called an outdoor folk museum, in which traditional ways of life and traditional methodologies are put on display for local people to be able to see the traditional ways of doing things and to carry on the tradition. So he's really calling for the generation of a kind of local folk museum, but a living folk museum, so that so that it's not memorializing traditions that are obsolete, but in fact is modeling the kind of technique and the kind of behaviors that can keep these traditional occupations and arts functional and viable. In subsequent chapters, he talks about transportation and traditional forms of transportation using bullocks. So I'm fascinated by this and want to continue my research into looking at this idea of the relationship of artisanship to liberation. This is not a connection that we often see around the world. There are very few national leaders that have engaged in this kind of analysis, even in the movement against colonialization, which took place in the mid-20th century, or colonialism, rather, that took place in the mid-20th century. In the African anti-colonial movement, we do see some of the leaders who were known for this. In particular, Amilcar Cabral in Guinea-Bissau, who was very interested, was an agronomist by training, and was very interested in traditional agriculture and agricultural practices as a form of resistance to Portuguese colonialism. And to a lesser extent, some of the other African leaders like Jomo Kenyatta were also sympathetic to the cultivation of traditional culture and traditional activities as an anti-colonial exercise. All of these, Cabral's work, Kenyatta, and Gandhi, for that matter, all of these promoted a sense of a rejection of a colonial plantation system. And in fact, some of the strikes in the Assamese tea plantations in India were an example of rebellion against the colonial plantations. The genius of Gandhi in this way, which I have not seen recognized as such in Western scholarship, is in tying together the idea of local, in fact, hyper-local artisanship with the anti-colonial struggle, as well as an economic system which is not only decentralized, but which rejects industrialization in a globalized form or multinational form of capitalism. So I wouldn't say that this necessarily leads to a particular kind of socialism, but it's a localized form of capitalism that rejects both feudalism as well as the national capitalism that removes wealth from the villages and concentrates it both in the cities and in the colonial powers overseas. In the first part of the book, Gandhi talks about the basic principles of what he calls village Swaraj. This includes a number of interesting and in some cases unexpected concepts, including full employment, manual labor, equality, decentralization of leadership, self-sufficiency, cooperation, equality of religions, and even satyagraha. He then goes on into greater detail about how each of these contributes to this overall concept of Swaraj. So it's really impossible to oversimplify Swaraj and translate it directly into one English word. It's more of it's a complex concept and a complex of different concepts that actually involve that are actually involved with other
concepts advanced by Gandhi, including Swadeshi and Satyagraha. This is why different writers, I think, have drawn different meanings of Swaraj. Um, and in one of the most famous, in Hardeman's book, this is why I think he defines it in a different way, because there is no exact English translation for this. And as I mentioned earlier, Hardeman talks about the significance of self-discipline and not so much about the re-envisioning of a village-based decentralized leadership that involves economic transformation. All of this, of course, stems from the idea of personal transformation that Gandhi has put as being prior to everything else. The personal transformation is the source and the pillar of what becomes national and cultural transformation. In the research that I've been undertaking, at least among the Western sources that are accessible to me, I don't see either an interest or let alone a focus on craft or artisanship as a core pillar of the anti-colonial struggle. In fact, having been interested in that relationship throughout my own work, I'm a little bit embarrassed, I have to admit, that I haven't noticed this connection before in Gandhi's work. However, it just goes to show that the Gandhi we are presented with in the West is not the Gandhi who advocated a blueprint for village folk life and social organization. This probably reflects the bias of the West, that the Gandhi we know because Gandhi can represent many things to many people, but the Gandhi we know in the West is the Gandhi of civil disobedience and resistance to the British Empire, and less so the Gandhi of artisanship and village life. Margaret Burke White's iconic photo of the spinning wheel notwithstanding, village life as a core aspect of India's liberation and restructuring. I'm also fascinated by these other traditional crafts and practices he refers to in this text without the same level of development as Khadi, which became such an important symbol that it took center stage and continues to hold that iconic centrality of the representation of artisanship, the central embodiment of artisanship in Gandhi's work. So to conclude, I would just admit that I have my work cut out for me as I pursue this line of research, which, as I said, at least in the West, seems to have been more or less overlooked. But there is really fertile territory to be plowed and to be further examined in the role that traditional crafts, artisanship, and village life played in the political transformation as well as the social transformation and economic transformation of India in the years following Gandhi. So those are my remarks for today, and I will appreciate feedback. And if you want to point me in further directions where you think my work can benefit, I would appreciate that as well. Thank you very much, Professor William. Now, I think Professor Ravindra Brahmeji would like to make some observations on Professor William paper. Ravindra Brahmeji, would you like to make some observations on this paper presented by Professor William? Yes, Professor William presented the central thought behind Gandhian philosophy, and his whole thought and the whole economic thought was very much focused on what William says, that on decentralization of power, decentralized economy, it's a village economy, and what he talks about a very famous book by Village Swaraj, in which he very much deals with. Um, I think this is the way, particularly for India, to survive the village economy, because we have lots of hands without work.
So it will very useful in a manner because everyone having a creativity himself, and so that must be translated into a kind of asset, a kind of his self-reliance also. So it's a really very nice presentation by Dr. William. So, Professor William, thank you very much for your presentation, and to Professor Thank you. Ravindra Brahmiji for his observations. I think for decentralization of the governance system, the panchayat system, which is known as the Panchayati Raj system. Here, in the very beginning, when the panchayats were started, Gandhiji has said that only panchayat can bring Swaraj in villages, not only in terms of governance or politics, but in terms of economy and social assimilation of people. But that is yet to be seen, because the panchayats are there, but its functions of social assimilation and economic development is yet to be achieved. So we have made a lot of recommendations, and those recommendations are there, but there are some recommendations which needs yet to be implemented. So with this paper of Professor William and Professor Professor Sahab of Chhattisgarh, we would like to uh, make a recommendation on the basis of these two papers to the government that these should be taken into consideration while thinking for Swaraj and self-reliant India. Now, if there is Dr. A.K. Pandey would like to ask any question to both of the professors, or any of the professors, or if you have any observations, डॉक्टर ए के पांडे साहब आप कुछ पूछेंगे इन लोगों से? कोई ऑब्जर्वेशन आपका है, या फिर हम लोग आगे ऋषिकेश जी के पास चले? एक मिनट, वो अनम्यूट कर रहे हैं खुद को। एक अच्छा, मिनट, ए.के. पांडे सर अनम्यूट कर रहे हैं खुद को। अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट हुआ नहीं है। जी जी, अब अनम्यूट हो गया है, अब बोलिए सर। हाँ यस, थैंक यू। डॉक्टर Thank you. ए के पांडे साहब, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दो बड़े प्रोफेसर हैं हमारे साथ अभी इकोनॉमिक्स के, इन लोगों ने अपनी बातों को रखा है। अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप इनसे पूछे, अन्यथा हम लोग जी जी पूछ नहीं, लें, धन्यवाद पूछ लें पांडे जी। पांडे धन्यवाद इस अवसर के लिए। लेकिन यह है कि मेरे पास हाँ। जो प्रश्न है वो शायद मैं खुद ही उनका उत्तर देना चाहूँगा अगर समय मिलेगा, क्योंकि पिछले 3-4 सेशन से मैं आप सभी के साथ हूँ, और उसमें एक कुछ ठोस चीजें मेरे मस्तिष्क में आई हैं। उसमें से मैं नहीं समझता कि तुरंत 2 शब्दों में उसका आंसर दिया जा सकता है। मैं सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कि हम लोग गांधी को जानते हैं उनके बातों से, उनके एक्शन से, लेकिन उनके रास्ते पर चलने का जो काम है उसके लिए जो रणनीति हमारी होनी चाहिए उस पर हम कहाँ चलें। यानी अगर आज गांधी होते और आज की समस्याओं उनके सामने होती, तब वो क्या रणनीति बनाते। जो उस समय उन्होंने रणनीति बनाई उस पर शायद कुछ बदलते, कुछ नई सोच करते। दरअसल उसी पर मैं करना चाहता था, तो जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं कहूँगा। लेकिन मेरा विचार है यह प्रश्न आप सभी के दिमाग में नहीं, ये हम लोगों के जेहन में भी है कि अगर गांधी जी होते तो अभी कोविड-19 की जो समस्या है इस पर गांधी जी कैसे
रिएक्ट करते, कैसे इस पे काम करते, क्योंकि गांधी जी ने जब वो प्लेग का हुआ था तो उस समय उन्होंने करके दिखाया था, लोगों के साथ रहे थे और उनके साथ रहकर उन उस बीमारी के साथ कैसे जूझें, कैसे ठीक करें, इस पर उन्होंने काम करके दिखाया था कैसे हो सकता है। लेकिन अभी अभी के संदर्भ में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई हम लोगों को कोई आदमी दिखा नहीं जो इन सब कामों को करके कोई दिशा दे। तो इसके लिए हम जरूर चाहेंगे कि कोई ऐसा हम लोग इस पे चर्चा करें और कोई इस पे नीति बनाएं कि हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, और जो तय करें उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उस पर हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी मैं मानता हूं कि अभी का जो समय है उसमें हम गांधी जी के जो विचार हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं, और उस पे अगर हम चलें तो समाज की बहुत सारी कमियों को हम दूरी कर सकते हैं, और समाज को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वास्तव में, जो आप जिसे इंडियनेस कहते हैं, या वास्तव में जो जरूरी चीज़ें हैं उनको पा सकते हैं। अभी होता क्या है कि जो भी प्रोग्राम पॉलिसीज जो बनते हैं वो सब बन रहे हैं एसएस नीड पे, मतलब आपको क्या मिलना चाहिए, क्या और क्या आपको चाहिए, दोनों में बड़ा गैप इसलिए है क्योंकि ये फेल्ट नीड पे नहीं है। जब लोग अपनी आवश्यकताओं को स्वयं बताएंगे कि मेरी ये आवश्यकताएं हैं और मुझे ये चाहिए, और जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पंचायत का जो सिस्टम जो हमारे यहाँ लागू है 73वें संशोधन के बाद से, उसमें ऐसा प्रोविजन है कि जैसे पंचायत अपना बजट बनाए, पंचायत अपनी आवश्यकताओं को बताए और वो फिर ब्लॉक को भेजे, फिर ब्लॉक अपनी आवश्यकताओं को बताए, अपने प्लान को बताए, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाए, फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्लान में जुड़े, और डिस्ट्रिक्ट प्लान से फिर आगे जाए और वो स्टेट के प्लान में जुड़े, और जब स्टेट का प्लान वो अपना बनाए और वो बनाकर नेशनल प्लान पे भेजे तो फिर वहाँ नेशनल लेवल पे हो। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है, ये थियोरेटिकल बात है, व्यवहारिक बात में ये ऐसा नहीं हो रहा है। और जब तक ये ऐसा नहीं होगा तब तक ग्राम स्वराज और जो जो भी स्वराज की बात हम करते हैं वो केवल हमारे बीच चर्चा का विषय रह जाएगा। तो ऐसा मैंने कई बार कहा है, और कई जो सरकार के लिए रिपोर्ट लिखी है उसमें लिखा भी है मैंने ऐसा, लेकिन वो केवल लिखने के लिए और कहने के लिए ही रह गया है। तो फिर हम लोगों ने अभी सोचा कि चलिए हम लोग एक इस तरह का वेबिनार करें, और उसके बाद के और फिर भी बातें आई हमारे सामने, उन सबों का रिकॉर्ड करके फिर उसको हमने कंसर्न जहाँ जिस गवर्नमेंट को था और उनको हम लोगों ने दिया है, और उस गवर्नमेंट का फीडबैक अभी आना बाकी है। शायद अभी बहुत कम ही समय हुआ है हम लोगों को दिए हुए, हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो हमें मिलेगा तो हम आप सब लोग से उसको शेयर करेंगे। ये आपका सजेशन, सुझाव बहुत ही अच्छा है। और प्रोफेसर विलियम भी मुख्य रूप से इसी बात को कह रहे हैं, जब वो फोक इकोनॉमी की बात, फोक कल्चर की बात, फोक गांधीयन फिलोसफी की बात करते हैं, या फोकलोर के माध्यम से जब वो गांधी को समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता है। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास ऐसे भी जनजाति हैं जो गांधी के जीवन को जी रहे हैं और जिनको हम लिविंग गांधीयन कहते हैं, और ऐसे भी सुदूर ग्रामों में रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे समुदाय हैं जो गांधी को जी रहे हैं। तो उन सबों का को देखने के बाद जो उसका निचोड़ है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केवल सरकार से ये नहीं हो सकता है। तो अगर हम अपेक्षा करें कि सरकार इस काम को कर दे, तो सरकार की अपनी प्रायोरिटी होती है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी प्रायोरिटी होती है, वो नहीं कर पाएगी वो जब तक कि उनके इंटरेस्ट को नहीं सूट करता हो। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग उसको लिख लें, और लिखने के बाद फिर हम सोचें, उस पर चर्चा करें कि कैसे करके इसको किया जा सकता है। इसलिए आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो आप उस पे जब चाहें आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, या एक अलग से हम लोग उस पर वेबिनार कर सकते हैं। अगर आप सबों का परमिशन हो तो मैं अब उनको डॉक्टर ऋषिकेश जी को आमंत्रित करूं कि वो अपनी बातों को रखें, क्योंकि वो रामनगर एक छोटा सा कस्बा ऐसा जगह है
जहाँ की बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। मैं जब वहाँ गया था तो बिल्कुल सड़कें सूखी थी। रात में वहाँ रहा, डाक बंगलो या सर्किट हाउस था, उसमें रहा, तब बहुत अच्छा था। रात में खाना खाया, बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे 2-3 रात का बजा तो हल्ला होने लगा, पानी आ गया, पानी आ गया, जल्दी जल्दी अब आप छत के ऊपर जो कमरा है उसमें जाइए और सुबह फिर वहां से निकलिए। तो वैसे वैसे कठिन जगह पर ऋषिकेश मिश्रा जी रहते हैं और थारुओं के बीच रहते हैं, थारुओं की संस्कृति का संवर्धन करते हैं। और मैंने सोचा था कि अगर प्रधानमंत्री जी होते तो इनकी बातों को वो सुनते और तब शायद उस क्षेत्र का कुछ कल्याण हो जाता। फिर भी अभी ये अपनी बातों को रखेंगे तो जितनी हम लोगों के पास जो भी अभी रिकॉर्डिंग हो रही है उसको जरूर हम लोग भेजेंगे प्रधानमंत्री जी को और उनसे आग्रह करेंगे कि फिर वो हमारा कुछ इस तरह का कार्यक्रम जब हम करें तो उसमें आए और तब ऋषिकेश जी को भी हम लोग जरूर ही बुलाएंगे। तो डॉक्टर ऋषिकेश मिश्रा जी से आग्रह है कि वो अपनी बातों को रखें, विद्वत जनों के सामने आप अपनी बातों को रखें। अगर आप चाहें तो अंग्रेजी में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो हिंदी में भी रख सकते हैं। जी, मैं हिंदी में ही रखूंगा। ठीक है, रखिए। ये राष्ट्रबंध महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर श्री नारायण जी की अनुकंपा को मैं हृदय से महसूस करता हूँ। एक थोड़ी देर की भेंट आदिवासियों से सर को मिलाने के क्रम में हमारी हुई थी और उन्होंने मुझे याद रखा, इसके लिए मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ तो मैं हूँ आज साथियों के प्रति भी जो 1917 में चंपारण आए। मैं व्यक्त करना चाहता हूं। श्रीयुत बबन गोखले और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मेरे ख्याल से रविकेश जी का इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। योग्य एवं अनुभवी शल्य चिकित्सक डॉक्टर देव तथा उनकी सहयोगी श्रीमती प्रोफेसर करवे, श्रीयुत नरहरि द्वारिकादास पारिक और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मणिबाई पारिक, श्रीयुत महादेव हरिभाई देसाई तथा श्रीमती दुर्गाबाई देसाई के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने मानवीय करुणा से द्रवित होकर चंपारण के हमारे शोषित प्रताड़ित पूर्वजों को शिक्षित करने के लिए अपना अमूल्य समय दिया और तमाम असुविधाओं के बावजूद बीच रहना स्वीकार किया। मैं बापू के इस जन्मदिन पर खास तौर से उस प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूं जब राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, उनके बार बार के आमंत्रण पर चंपारण के नीलहों के अत्याचार से पीड़ित किसानों की कथा अपनी आंखों से देखने के लिए बापू चंपारण आए। उन्होंने देखा और महसूस किया कि चंपारण के इन किसानों की सहनशीलता अकथनीय है। कितना अभाव झेल सकते हैं ये, कितनी कठिनाई में जी सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बापू ने देखा।
एक परिवार के बारे में तो उन्होंने लिखा है कि पति और पत्नी दोनों के बीच मिलके एक ही वस्त्र था। ऐसी गरीबी को भी बर्दाश्त करने वाले समुदाय को बापू ने एक अस्त्र बना दिया, यह कहकर कि निर्भय हो जाओ, सच जो है उसे बिना डरे कहो, इस सच ही कहो। ये एक आदेश, एक निर्देश था बापू का चंपारण वासियों से, और उन्होंने ये महसूस किया कि नीलहों के अत्याचार की जो बीमारी है यह तो दूर की जा सकती है, लेकिन उससे बड़ी बीमारी एक दूसरी उनकी तलस्पर्शनी दृष्टि ने देखा, और वह थी चंपारण की अशिक्षा। इसलिए आने के साथ ही उन्होंने ये उद्यम प्रारंभ किए कि कई विद्यालय प्रारंभ कराए। पहला मोतिहारी में के बगल के एक गांव में, और फिर इस तरह कई कई विद्यालय, भितिहरवा आश्रम में भी एक विद्यालय बना। तो पहली जो जरूरत उन्होंने समझी वो ये थी कि इस क्षेत्र के लोगों को अशिक्षा इनकी दूर की जाए। और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं आप श्रीमानों के समक्ष कि आजादी के बाद भी हमारी सरकार बिहार की, उसने चंपारण वासियों को एक विश्वविद्यालय नहीं दिया, जबकि चंपारण और जिलों में विश्वविद्यालय बने। जयप्रकाश बाबू के नाम पर विश्वविद्यालय बना, विनोबा भावे के नाम पर बना, कुंवर सिंह के नाम पर बना, और हमारी एक पूरी पीढ़ी इसके लिए लिखती रही कि महात्मा गांधी के नाम पर चंपारण में एक विश्वविद्यालय। दो, लेकिन उन्हीं के उत्तराधिकारियों ने उनकी इस पीड़ा को नहीं समझा। 1916 में पूरे 100 वर्षों के लगभग केंद्र के सहयोग से केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। नाम तो महात्मा गांधी का ही रखना था, रखा गया, लेकिन यह एक बड़ी पीड़ा है हमारी कि जिस बीमारी को गांधी ने आते ही लक्ष्य किया था, उस बीमारी का समाधान समुचित रूप से एक अरसे तक टलता रहा। अब एक बात, जैसा कि श्री नारायण जी ने कहा भी कि आधुनिक युग के लोगों में, विचारकों में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वावलंबन की चर्चा की थी। बाद में लोकमान्य तिलक ने भी स्वराज्य के साथ स्वावलंबन की घोषणा की। 1912-13 में बाबू मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती छपी थी, और भारत भारती ने भी स्वावलंबन की बात की थी। बापू जो 17 में चंपारण आए तो उन दिनों उनके राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में कहीं स्वावलंबन की बात नहीं दिखाई पड़ती। मेरा ख्याल है कि 1920 के आसपास जब स्वदेशी आंदोलन उनका चला, उसी स्वदेशी आंदोलन के साथ स्वावलंबन और ये चरखा का यंत्र भी चला,
और इसने व्यापक स्तर पर भारतीयों को जोड़ा। घर घर में महिलाओं ने सूत काटने शुरू किए और वह एक ऐसा आर्थिक आधार दिया गांधी जी ने कि वो सूत गांधी आश्रम के द्वारा ले लिया जाता था। रुई की पूनिया घर में आ जाती थी और घर की महिलाएं काटती थी और इकट्ठे कुछ मूल्य हो जाने पर बिनी हुई दरी मिल जाती थी, कोई मोटी सी चादर मिल जाती थी और ये महिलाओं के श्रम से का एक नया स्वरूप गांधी ने दिखाया। ये स्वावलंबन का संकल्प। मैं यह कहना चाहता था कि 3 आयाम हैं गांधी के दर्शन के साथ। एक तो सत्य का, अहिंसा का और स्वावलंबन का। ये त्रिआयामी पक्ष उन्हें निश्चित रूप से भारतीय जीवन में जो महात्मा संत होते थे, होते रहने की जो परंपरा रही है, उस परंपरा से ही उन्हें जोड़ती। अब ये अलग बात है कि सामान्य तौर पर महात्मा लोग राजनीति के मामले में नहीं पड़ते। गांधी ऐसे महात्मा थे जो महात्मा भी थे चरित्र से, हृदय से, और राजनीति और देश को आजादी दिलाने का संकल्प भी उनका था। मैं उनके जन्मदिन पर आत्मनिर्भरता की दिशा में उन्मुख देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान, भारत की वैदिक परंपरा के अनुरूप संकल्पित होना आवश्यक मानता हूं। तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः की भारतीय सोच साकार हो सकेगी। ये संक्षिप्त सा मुझे इतना निवेदित करना था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा आपको। आपने अपनी बातों को अच्छी तरह से रखा। अब मैं डॉक्टर ए.के. पांडे साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बातों को रखें हम लोगों के बीच। पांडे सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ए.के. पांडे सर खुद को अनम्यूट कर लीजिए। ए.के. पांडे सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप अपनी बातों को रखें ए.के. पांडे पांडे साहब। सर, ए.के. पांडे सर, ए.के. पांडे सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पांडे सर, हमें आपको हमारी आवाज आ रही है? क्या हुआ नीरज जी? पांडे सर, डॉक्टर ए.के. पांडे साहब, आपको आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट कर लें अपने को। आप हेलो अनम्यूट करें। पांडे सर, आवाज उनको नहीं मिल रही है। पांडे सर, फोन लगा के बोल दें सर, फोन लगा लीजिए, फोन कॉल करके।
हेलो पांडे सर, सर अभी आपका ही बोलने का टर्न है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ मतलब अब आपको ही वो अनाउंस कर रहे हैं आपका। पांडे सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? पांडे सर, हेलो। पांडे सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? पांडे सर से अभी मैंने फोन पे भी बात की, मगर शायद उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव दोनों चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं जो खुद बड़े बड़े विद्वान हैं, और कुछ लोग उनमें से पहले भी हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं जी। तो जैसे हमारे साथ मिताली दत्ता जी यूट्यूब पे देख रही हैं, कल्पना गुहा जी देख रही हैं, अ, और असम से भी गोस्वामी जी देख रही हैं, सुनील दुबे जी देख रहे हैं। तो सारे लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। डॉक्टर शेफालिका वर्मा बहुत बड़ी पोइट हैं, वो भी इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रही हैं। तो उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। AK पांडे सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पांडे सर, आप आपको अपनी बातें रखिए। हाँ आपको आवाज धन्यवाद। मिल रही है? डॉक्टर पांडे साहब, आपको आवाज मिल रही हाँ है? हाँ, आप आप मिल हाँ रहे अपनी हैं। हाँ बातों, आवाज आने अपनी विचारों को रखें आप। लगी। धन्यवाद धन्यवाद नारायण साहब। अ, मैंने जैसा कि कहा कि कुछ कुछ बातें मैं पिछले वेबिनार से कर रहा हूँ, और मेरे मन के अंदर जब महात्मा गांधी का नाम आता है तो वे बातें मेरे सामने एक बार फिर आने लगती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई चीज़ रिपीट हो जाए, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हमने महात्मा गांधी को उनके बाद ही हम पैदा हुए हैं, लेकिन जो भी अध्ययन किया है वो दो कोणों से किया है। एक तो वह है कि देश के बड़े नेता के रूप में उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने कार्रवाई की, और क्या उसका परिणाम हुआ। और लेकिन 28-30 साल की उम्र के बाद जब हम लोगों ने जब हमें भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने का मौका मिला, और उस समय का जो कानून था, CRPC, IPC, और उस समय का जो इतिहास था, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका मिला। और तब कुछ ऐसी चीजें मेरे ग्रुप डिस्कशंस में जो कि पहले मेरे दिमाग में नहीं आती थी। पहले हम एक सिंपल फॉलोअर थे, लेकिन कानून पढ़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, महात्मा गांधी बहुत बड़े, बहुत ज्ञान के चरम बिंदु पर पहुंचे हुए थे, जो कि रणनीति डिसाइड करते थे कि एक खास परिस्थिति में देश को अगर आजाद करना है, आगे बढ़ना है, तो रणनीति क्या होनी चाहिए। और उस रणनीति पर वो दृढ़ रहे, इतना दृढ़ रहे कि नरम दल और गरम दल अलग हो गया, फिर भी उस नीति से वे जरा भी नहीं डिगे और अंत में सफलता प्राप्त किए। जैसे हम लोग उनको एक्शन, उन्होंने क्या क्या किया वो देखते हैं। नमक सत्याग्रह, एक उदाहरण देता हूँ, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह और डांडी मार्च
मेरे विचार में उनका डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बैटरी वो हो जा रही है। हाँ, धन्यवाद। फिर से जुड़ गए। हाँ, हेलो। जी जी सर, जी हाँ बोलें सर। हाँ, तो नमक सत्याग्रह के समय दांडी मार्च के लिए जब वो चले, उनके मन में क्या विचार थे? सीधे साधे विचार कि एक कानून आया है, वह कानून जनता के हित में नहीं है, उसको हम चुनौती देकर तोड़ेंगे। सारा जो उस समय दृश्य था वह यही था। वे गए वहां, उन्होंने एक नमक का टुकड़ा उठाया और उन्होंने कहा कि हमने कानून तोड़ दिया। कोई कोई कहते हैं कि एक नमक का टुकड़ा उठाने से इतना बड़ा शासन कैसे हिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई, बाद में गिरफ्तारी या जो कुछ भी हुई, उसने यह दिखा दिया कि जब सैकड़ों सैकड़ों लोग इस तरह से कानून तोड़ेंगे तो संभवतः आर्थिक रूप से लाभदायक रेवेन्यू मशीनरी नहीं। सरकार दो चीजों से चलती है, एक तो यह है कि रेवेन्यू कलेक्ट होता रहे, दूसरा यह है कि जो पालन नहीं करे सरकार के उसका, उसको कैसे दंडित किया जाए और उस दंड को ऐसा उदाहरण बनाया जाए कि भविष्य में दूसरा कोई वैसा साहस न। इसको कहते हैं सरकार इकबाल से चलती है। महात्मा गांधी ने उस इकबाल को तोड़ दिया कि हम बात नहीं मानेंगे। दूसरा उन्होंने कहा अहिंसा, कि कानून हम तोड़ेंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन रिटेलिएट नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ा हथियार। इसको संभवतः बहुत से लोग अहिंसा और उससे जोड़ते हैं। मैं उसको सीआरपीसी से जोड़ता हूँ। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग तो संभव है, लेकिन गोली तभी चलाई जा सकती है जबकि उसमें से कोई हिंसक प्रवृत्ति हो और उससे खतरा हो। इसीलिए उनका जो दूसरा हथियार अहिंसा था, उसने पूरे सीआरपीसी और पुलिस मशीनरी को उनके सामने लागू कर दिया। आपने पढ़ा होगा, लाठियां चलती थी, लोग घायल होते थे, लेकिन गोली चलाने के लिए जो शर्त है वो कभी नहीं आ पाई उनके सामने, और उनके आंदोलन की सफलता यही है। जब मैं गांधी को अफ्रीका में देखता हूँ रंगभेदी नीति के से संघर्ष करते हुए, तो आम आदमी उससे संघर्ष करता तो वह यही कहता कि क्या करें, सरकार ही ऐसी है, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने इस पर इतना सोचा। यह बहुत कम लोग याद रखते हैं कि उन्होंने कानून का गहन अध्ययन किया था, उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, और उसी कानून में जो उन्होंने लूपहोल देखा, उसी के आधार पर अपनी रणनीति अहिंसा, सत्याग्रह, जिसको कहते हैं नॉन कोऑपरेशन, और कानून तोड़। तो सरकार के जो दो हथियार, एक तो यूज ऑफ फोर्स, लोगों को सजा देने के लिए गोली चलाना हो, वह पंगु हो गया। दूसरा, कानून तोड़े जाने से जो उससे रेवेन्यू आने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई। नमक से सरकार सोचती थी कि बहुत पैसा कलेक्ट होगा उस पर टैक्स लगाने से, और उसको उन्होंने पंगु कर दिया। तीसरा जो राजस्व का स्रोत था अंग्रेज सरकार के, वह था कि यहाँ से कपास जाती थी। फिर याद कीजिए, महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ की मिट्टी में कपास बहुत होती है, इसीलिए वहाँ का वस्त्र उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ वस्त्र उद्योग है उसी तरह का। उन्होंने देखा कि कपास विदेश जा रही है, वहाँ से कपड़ा बनकर जा रही है। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में अंग्रेज सरकार को बहुत फायदा मुनाफा हो रहा है। इसलिए तीसरी उन्होंने रणनीति यह की कि यहीं से कपास से हम अपना कपड़ा बनाएंगे। नतीजा हुआ कि वो सिंबल से ही सरकार को लगा कि सब लोग बनाने लगेंगे। कैलकुलेट किया तो शायद वहाँ की मिलें बंद हो जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान से बड़ा मार्केट इंग्लैंड खुद भी नहीं था। इंग्लैंड की
जनसंख्या की तुलना में यह जनसंख्या बड़ी थी और सारा फायदा उनको यही होता था। इसलिए उस समय जो रणनीति उन्होंने बनाई, जिस दुश्मन को हराना उसकी कमजोरी के आधार पर बनाई। मैं उम्मीद करता हूं कि जो यह एलीट ग्रुप है, हम लोगों का जो एलीट ग्रुप है, वह सिर्फ उनके एक्शन पर नहीं सोचेगा, वह सिर्फ उनके थॉट पर भी नहीं सोचेगा, बल्कि वह उसके थॉट प्रोसेस पर सोचेगा। थॉट प्रोसेस मतलब उन्होंने जब दुश्मन को पहचाना कि सिर्फ 2 से 4 हजार अंग्रेज देश में हैं, उन्होंने नियम कानून ऐसे बनाए हुए हैं, इस तरह से पैसा जा रहा है, इस तरह से देश का नुकसान हो रहा है, इस तरह से कानून इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो उसके खिलाफ जो रणनीति उन्होंने बनाई, उस थॉट प्रोसेस को हमें आत्मसात करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि दुश्मन इसी तरह का हो। आज जो दुश्मन होगा, आज जो विश्व के सामने समस्याएं हैं, वह एक और रूप में आई है। वह हमारे जो दुश्मन है वे हैं आतंकवाद, देशों में प्रतिस्पर्धा, आपसी लड़ाई झगड़े, बीमारियां बड़ी बड़ी। उसके खिलाफ क्या रणनीति होगी, उस पर गांधी ये कैमरे वाला मोबाइल ना, इसमें पूरा खत्म हो गया तुम्हारा, सुन रहे हो? हाँ, उस पर क्या रणनीति होगी, उस पर एलीट ग्रुप को एक सोचना होगा। अरे सुन रहे हो? मैं फिर कहता हूँ, हेलो, आवाज आ रही है ना प्लीज? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है आवाज। हाँ, उस सोचने, हाँ धन्यवाद, आपकी भी आवाज मिल रही है। उस पर सोचने के लिए फिर एक और चीज मेरे दिमाग में है कि व्यक्ति नश्वर है। एक आदमी सोचेगा तो वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। संस्थाएं बहुत दिन तक चलती हैं। मैंने शुरुआत में, शोध के शुरुआत में मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में कुछ दिन रहा था, और यद्यपि उसे भाभा ने स्थापित किया था अपने स्ट्रेटजी, लेकिन आज भी उसमें जो लोग हैं, उनकी जो सोच है, उनका जो रिसर्च का स्तर है, उतना ही उच्च है। मुझे उम्मीद है कि यह जो एलीट ग्रुप होगा, जैसा कि पहले भी हम लोग सोच चुके हैं, एक ऐसा संस्थान सोचेगा जो गांधी के बारे में सोचे समझे, उनके थॉट प्रोसेस को समझे, और क्या रणनीति उनके सिद्धांतों के आधार पर आज चलेगी, आज की परिस्थितियों में जो आज समाज के और देश के और दुनिया के दुश्मन है। एनवायरनमेंट का प्रश्न है, भूखमरी, लड़ाई, युद्ध, आतंकवाद, तब क्या स्ट्रेटजी लगेगी, किस तरह से अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं यह नहीं कहता हूं कि उसमें कोई कमी है, उसको कार्यान्वित करने का जो तरीका है वह क्या होगा, क्योंकि महात्मा गांधी की विशेषता थी कि परिस्थिति व्यक्ति के अनुसार कभी भी उनका जवाब गलत नहीं गया। जब एक अछूत से और गरीब से मिलते थे, उससे जो बात करते थे, उनका भी उस समय भी उनका मेरे विचार से फिर से उनका डिस्कनेक्ट हो गया। पांडे सर फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो 1 मिनट को वेट कर लेते हैं। जी कनेक्ट हो रहे हैं। जी कनेक्ट हो रहे हैं। एक सेकेंड, मैं जी प्रयास करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ, तो जी जी सर। उस संस्थान में जो हेलो, जो उसमें जो अध्ययन हो,
उसके हिसाब से जी जी, बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ वो रही है। जिस संस्थान में जो अध्ययन हो वह आज की स्ट्रेटजीज पर सोचे। जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी जब ब्रिटेन की शीर्षस्थ शीर्षस्थ महारानी से भी बात करते थे तो भी उनके तर्क अकाट्य होते थे, और देश के जो गरीब से गरीब आदमी को जब फेस करते थे तब भी महात्मा गांधी जो बोलते थे वह सच के इतने करीब होता था कि उसका कोई उत्तर नहीं था। वह स्ट्रेटजी आज क्या हम शुरू कर सकते हैं? वह दूसरी चीज यह है कि मान लीजिए कोई संस्थान हम सोचें, इंटेलेक्चुअली जो स्ट्रेटजी तय करेगा उसको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी कहाँ जाएगी? हमारे ख्याल से इंटेलेक्चुअल इनपुट दे देना पर्याप्त होगा इस तरह के संस्थान का, लेकिन कभी कभी जब सरकारें उसका हिस्सा होती हैं, उसका समर्थन होता है, तो वे उसके रिकमेंडेशंस कार्यान्वित हो जाते हैं। तो हम लोगों ने जैसा बात किया, एक अच्छी शुरुआत हम लोगों ने की है, नारायण साहब ने भी की है कि एक इस पर ऐसा संस्थान दिया जाए और इस संस्थान को क्रिएट करने का रिकमेंडेशन यह एलीट ग्रुप स्ट्रांगली करे कि आज की जो दुनिया की समस्याएं हैं उस पर विचार के लिए ऐसे संस्थान की जरूरत है, क्योंकि गांधी आज सिर्फ देश के नेता नहीं रह गए। आज विश्व शांति दिवस उनके नाम पर यूएनओ मनाता है। यूएनओ में हम लोगों का एक प्रमुख स्थान होने जा रहा है, और ऐसी स्थिति में गांधी का जो संस्थान होगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि उस माध्यम से उस रणनीति को, उस स्ट्रेटजीज को कहीं न कहीं से कार्यान्वित करने की भी स्थिति में रहेगा। नहीं रहता है तो हम प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि सत्याग्रह तो यही है ना कि जो चीज सही है उस पर हम बढ़ते रहें। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, ये विषय बहुत बड़ा है। गांधी के बारे में उन्होंने क्या किया, इसमें बहुत बड़ा स्टडी चाहिए, बहुत अध्ययन चाहिए, और उसमें से उनके थॉट प्रोसेस को निचोड़ना और उस प्रोसेस को आज के उसमें ट्रांसलेट करना, वह भी एक बड़ा काम है। बहुत अच्छे ग्रुप की जरूरत होगी। लेकिन हम लोग वेबिनार का जो आज एक तरह से अंतिम दिन है, इसमें अगर एक छोटा सा रिकमेंडेशन इस पर दे सके तो शायद हम लोग अपना कर्तव्य आज की दृष्टि से पूरा कर देंगे। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा शायद मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी आज तक मैंने गांधी को समझा है और उनके रणनीति को समझा है, उसका निचोड़ मैंने आपके सामने रखा हुआ है। आपने बहुत ध्यान से सुना और अटेंड मौका दिया मुझे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं हमेशा आपके साथ इसमें लगा रहूंगा, जब भी जैसे भी आवश्यकता होगी मैं तैयार रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर ए के पांडे साहब। आपका जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ही सही है, और इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। और यह इस बात से मैं सहमत हूँ, और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोफेसर विलियम और प्रोफेसर रविंद्र जी भी सहमत होंगे कि आपके बताए नारायण सुझावों सर, पर कि गांधी ना, आपके नारायण बताए सर, सुझावों पर। हाँ, नारायण सर, नारायण सर, हाँ, बोलिए। I हाँ, I हाँ। will I will request you to, in two three lines, you should summarize what A.K. Pandey sir has delivered. Actually, he delivered in Hindi, and so that Dr. Williams can also understand what was ओके, his point ओके, of view. ओके, ओके। Professor William, what Dr. A.K. Pandey had said is that we should not only uh, organize this kind webinar on Gandhi ji, but we should act on what Gandhi ji has said and how to achieve that. So we should act as a think tank for the global people to act upon the
action taken by Gandhiji during his period and how those actions can be taken in current situation, current perspective, so that there can be peace in the globe and Gandhian way of life can be adopted. So for that, I just want to share my uh, views with you, the progress that the Society for Empowerment has made. In one of the webinar, Professor Ole from Israel has said that let us have a center for Gandhi peace and disarmament. So we prepared that uh, the document required for having a center on peace, Gandhi and disarmament, or Gandhi peace and disarmament. So that paper is now with the UNO. So we and it is under the process. I do not know whether they will agree with our proposal or they will reject our proposal. Only time can say. But we have submitted the proposal. The proposal is in the process. Just possible in 3 4 months' time, we would be able to know that whether UNO has sanctioned it, UNO agrees with our views, or it does not agree with our view. But I am hopeful that UNO, since they are celebrating Gandhi and the Peace Day, Gandhi birthday as Peace Day, and they have some budget for this, so they can do it. They can give this kind of center to us. If they give, it's okay. If they don't give, then we will try to uh, have this center because the center is already there. We have already established a center. We are waiting for fund to come from the UNO. Then we will have people to work on that. If any one of us wants to volunteer for that, they are most welcome. They are most welcome, and we can uh, do it. It's not necessary that this should be done from Patna or from Delhi. This can be done from wheresoever our members are located, our well wishers are located. They can do. If they want, I am ready to share the paper document with them, and they can come out with the suggestions, and then accordingly we will further improve ourselves. We don't have any money right now to share with them, but as soon as we get any fund from UNO or from the government of India or from any other source, then we will start uh, appointing people on in that center. But center is has been initiated. It is very much uh, functional. Say theoretically, it is functional, not practically. So I think Dr. A.K. Pandey will have some sort of satisfaction that we are not only organizing the webinar. This is, I think, the sixth webinar in the series that we have started, and we have just forwarded. We have taken the first step, and I have some hope from the UNO. But let us do it because the two persons has been nominated on the board of that center. One is the Professor AD. He is a director of the Asian Development Research Institute in Belgium. And the other person is Professor Gupwell. He is a chief, global chief for the Women Development Program for the development of the women and poor. Uh, and he is also chief for this Gandhian thought. So both these two people have been nominated on our board. And tomorrow or maybe on Monday, I will write to them and will request them to accept their our request to be on the board, and we will acknowledge our um, on behalf of all our participants and the members of the society. We will acknowledge them the thanks, and we will request them to visit us or to come to India anytime
We don't have any FCRA at the moment. Otherwise, Professor Gupwell is ready to fund us whatsoever we need. But now we have to see how we can get FCRA. If we can get FCRA, then fund is not a problem that he has assured. The, that's not the problem. I think we will get some sort of fund, maybe in 3 4 months time, maybe from the UNO or from the, because UNO has sent nominated 2 persons on our board. That's important. So those people, they can support us. So let us wait for 2 3 months, and then I assure Dr. A.K. Pandey that we will be able to formulate whatsoever he has said, and we will try to make action program on that. Professor William and Professor Brahme is also requested to give their suggestions. If they want, they can be part of the center, though we are not in a position right now to share any fund with them, but definitely we can share the academic inputs with them, and if they want to give any paper, research paper, uh, then I will forward it on behalf of that center to UNO, and they will publish it in the research journal of the UNO meant for peace and disarmament. So this peace, disarmament, and Gandhi is a very important ingredient for current global scenario. So we are working, but I started it little late. But let us see. Hope that we will do it, and you all are there to mm, carry forward this work. So thank you very much. Thank you all. Now I will request Dr. Shivani. She is Secretary of the Society for Empowerment to give vote of thanks to. Uh, मैं आप सभी लोगों का सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट की ओर से स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में प्रोफेसर रविंद्र ब्रह्मे ने का बहुत धन्यवाद करती हूँ। रविकेश मिश्रा जी, भद्रा बहन जी, अभी लगता है वो अभी स्क्रीन पे नहीं है, प्रोफेसर विलियम का और डॉक्टर एवी आनंद वर्मन जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़ सके, लेकिन उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ में डॉक्टर सचिंद्र नारायण का मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट की ओर से। थैंक यू मैडम। चलिए नीरज जी, अब आगे क्या करेंगे? नीरज जी आगे वो स्लाइड दिखाएंगे। स्लाइड तैयार है दिखाने के लिए? नहीं तो क्लोज कर लें फिर। जी जी क्लोज कर लें। तो यस सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक